Hello dear students, I am Prashant Shukla and I like to most welcome to all of you in my channel Prerak Academy. My dear students, today we are going to discuss some numericals which is based on the topic mirror and a lens. And these numericals, you can say this video lecture is very important for class 10th, CBSE board class 10th. This lecture is for class 10th, but the NEET and IIT aspirants can also watch this lecture for their basic fundamental concepts. These are the basic fundamental concepts for the competitive aspirants also. So let's start. Suppose we are going to discuss a numerical, this. Listen carefully this numerical, my dear students. An object is placed, this is the question, I'm telling you the wording of the questions. Further I will give you the solution of this question. Question is this: an object placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. Listen carefully. An object is placed at a 10 centimeter from a convex mirror of the focal length 15 centimeter. This is the wording of question, right? Again you can replay and listen again. I told you the question. I told you the given condition of the question, and what we have to find. We have to find the position and nature and size of the image. My dear students, in my previous videos I told you about the ray diagram, and if you have the command in the ray diagram concepts, you can do these type of questions very easy, but you have to command that. Anyway, let me solve. First of all, we write the given conditions. Suppose that this is question and we have to represent the solution of this question on the board exam. How you write it here? First of all, we mention solution, not answer. We mention solution for the numericals. Numericals have their solution, not answer, not explanation, not description. Solution number, particular, whatever you view. Further, given. We will write the given conditions. What is given in this question? In this question, given a convex mirror. Listen carefully. आपको convex mirror की बात कह रहा है. Clues दिए हैं. Convex mirror की अगर बात कह रहा है तो आप न्यूमेरिकल में इमेजिन कर लो convex mirror. न्यूमेरिकल पढ़ते convex mirror इमेजिन कर लो, उसका रे डायग्राम इमेजिन कर लो. अब convex mirror में एक ही रे डायग्राम है. कॉन्केव में कई है और कन्वेक्स मिरर में एक ही डायग्राम है. और लेंस में इसका अपोजिट है. लेंस में कन्वेक्स में कई रे डायग्राम है, कॉन्केव में एक सिंगल है. तो हम लोग क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों. आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश वेल, बट मैं मिक्स यूज करता हूँ जिससे सबको समझ में आए. सो गिवन कंडीशन इज दिस: an object is placed at u minus 2. My dear students, I told in my previous videos when I told you the sign convention, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट किसी भी कंडीशन में, चाहे वो मिरर है, चाहे वो लेंस है, किसी भी टाइप का मिरर है, किसी भी टाइप का लेंस है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है. ये मिरर है या लेंस है. मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं कि ये कन्वेक्स मिरर है. कन्वेक्स मिरर का
ये है रे डायग्राम, सिंगल होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट इधर होता है, ये रिफ्लेक्ट होती है, इसका वर्चुअल लाइन फोकस से वेट करता है, दिस एंड दिस यहाँ कहीं सी होता है, एंड ये फर्दर दूसरी लाइन सी से टच करते हैं, ये सिंगल। क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है कि ड्रॉ रे डायग्राम, बट इन योर बोर्ड एग्जाम दिस कैन बी मेंशन माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, कि आप रे डायग्राम भी बनाइए। तो रे डायग्राम ये है, सिंगल कंडीशन है, यू लेफ्ट में है, यहाँ कनकेव मिरर होता तो भी यू लेफ्ट में होता, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में है, यहाँ मिरर है, लेंस है, यहाँ कुछ भी है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में है। सो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो ऑलवेज टेकन नेगेटिव, यू इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि लेफ्ट में होता है। आई टोल्ड इन साइन कन्वेंशन, लेफ्ट में जो भी चीज़ें होती हैं नेगेटिव होती हैं, राइट में जो भी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव होती हैं। वो जो भी चीज़ें क्या होती हैं, यू वी एफ एंड हाइट, वो बात की बात। यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट इधर नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। सेकेंड, तो रे डायग्राम को मैं मिटा देता हूं, एंड ऑल्सो क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन क्या था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर विच हैव द फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। इट मीन फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज गिवन हियर। अभी मैंने रे डायग्राम बनाया, फोकल लेंथ उसी तरफ एज्यूम करते हैं जिस तरफ इमेज बननी होती है। कन्वेक्स मिरर केस में राइट में इमेज बनती है, राइट इमेज बनती है, लेफ्ट में नहीं बनती है। उधर फोकल एफ उस तरफ एज्यूम करेंगे जिस तरफ इमेज बननी है। तो राइट इमेज है, राइट में चीज़ें पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव वालेंगे 15 सेंटीमीटर गिवन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूजन होती है, आप कई न्यूमेरिकल्स में देखते हैं -50 लिया है, वो उस कंडीशन में जिस कंडीशन में इमेज लेफ्ट में बनती होती है, और उस कंडीशन का क्लू क्वेश्चन में होता है। एज लाइक इन दिस केस क्वेश्चन में क्लू है कन्वेक्स, विच इज ओनली वन केस जिसमें कि यू लेफ्ट होगा, बाकी सब नेगेटिव राइट होगा, पॉजिटिव होगा। सो वी हैव टू फाइंड बी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वी हैव टू फाइंड आल्सो नेचर। So let me solve this. Now we can write here, as we know, my dear students, मैं आपको पूरा पैटर्न बताता हूँ, आपको ऐसे बोर्ड में करना होता है। गिवन क्या है, निकालना क्या, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। as we know, the mirror formula लिख देंगे, the mirror formula 1/f is equal to 1/v plus 1/u. This is the mirror formula. इसमें बच्चों ये वैल्यू पुट कर देंगे। मैं ऊपर ये रब कर रहा हूं। दिस इज द गिवन कंडीशन, 1/f is equal to 1/v plus 1/u. This is formula. In which part will do? F given here. This is 1/15. V, we have to find 1/v plus u minus 10. This minus sign will be displaces here. ये माइनस रहेगा, हमें निकालना है v। तो जिस टर्म को निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, जिस टर्म को निकालना है उसको हम सेपरेट अपनी जगह पे रख देंगे। इस 1/10 को इधर शिफ्ट कर दो, 1/50 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v, implies that एलसीएम आप ले लो यहाँ 30, एलसीएम लेना तो आता ही होगा, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस ऊपर अपॉन दिस इंटू दिस, बट एलसीएम लिया 30,
2 बचा and 3 बचा. It will be 5/30 and this will be 1/6. My dear students, ये 1/v आया है. This is 1/v is equal to 1/6. 5 6 it means v is equal to 6 centimeter. See here, v, it means the position of image will be 6 centimeter in the right hand side because this is positive. ये positive आ रहा है, negative नहीं है, तो right hand side. अभी मैंने डायग्राम वहाँ पर बनाया था, right में था, v कहाँ पर था, right में था, और इमेज राइट में बन रहा था, और यहाँ पॉजिटिव साइन ये बता रहा है वो राइट में बन रहा है. पहली चीज पोजीशन, दिस इज द पोजीशन, आप लिख देंगे देयरफॉर द पोजीशन ऑफ इमेज विल बी 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. नाउ नेचर की बात करें तो नेचर बेटा यहां पर ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा साइज बनाता है कन्वेक्स मिरर, यही कॉन्सेप्ट है, और इरेक्ट होता है, अब ऊपर की तरफ होता है, नॉट इन्वर्टेड. अगर इरेक्ट और अपवर्ड है तो वो वर्चुअल इमेज है. नेचर क्या लिखेंगे, इरेक्ट एंड वर्चुअल. अगर डाउनवर्ड बनाता है तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल. दिस इज नेचर, दिस इज नेचर. आई थिंक वी हैव टू फाइंड ओनली दिस, नो इन दिस केस. इट मीन नेचर एंड पोजीशन हमें निकालना था. अभी मैं आपको अगले क्वेश्चन बताने वाला हूं. इसी में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, पहला इसमें क्या ऐड हो सकता है, ड्रॉ रे डायग्राम. मैक्सिमम मार्क्स में दे दिया है, इतना वैल्यू दे दिया और ड्रॉ रे डायग्राम बना दिया. दूसरा क्या ऐड हो सकता है इस क्वेश्चन में, आपको मैग्निफिकेशन का कोई टर्म देगा और आपको फाइंड आउट करना होगा क्या, साइज ऑफ इमेज. मीन्स उसमें मैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर देगा और उसके क्लू के बेसिस पर साइज ऑफ इमेज पूछेगा. तो वो डिफरेंट क्वेश्चन है. आई थिंक इसमें बस इतना ही है. होप यू गेट इट वेल. Okay, my dear students, let me rub it and let us do another numerical. Let me rub it. Suppose that solution number 2. वो first case था and this is solution number 2. क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है माय डियर स्टूडेंट्स. न्यूमेरिकल देखना पड़ता है बच्चों, तो न्यूमेरिकल देख बता रहा हूं आपको. यस अ कॉन्केव मिरर, क्वेश्चन में पहले ही कह दे रहा है कॉन्केव मिरर. अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ 3 times magnified image. 3 times the magnifies image, 3 times magnified image from the object. ऑब्जेक्ट 3 गुना मैग्नीफाई मतलब बड़ी करके इमेज बनती है. मीन्स वी क्वेश्चन इज दिस, क्लू इज दिस, गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल अ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर. इन दिस केस कॉन्केव मिरर गिवन है एंड कंडीशन इज गिवन. अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया मैग्निफिकेशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब एनसीईआरटी के. Question is this: a concave mirror produces 3 times the magnified image when magnified image of the object when object is placed at 10 centimeter from the mirror. Where is the image located? Overall
पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ। गिवन कंडीशन क्या है, सोल्यूशन नंबर 2, सपोज दैट गिवन u minus 10, always take negative. I told you in previous numerical. And what is given? And also given height of image, हम लोग h2 मानते हैं height of image. This is the 3 times of h1. ये क्वेश्चन वर्डिंग है. Image we obtained a concave mirror produces the 3 times magnified image of the object, and which is placed at 10 centimeter. Then find the where is the image located for a sharp image, means V, we have point V. और कुछ दिया है? No, we have point V only. Now, first of all, given condition is concave lens, concave mirror. क्वेश्चन में तो रे डायग्राम बनाने को नहीं कह रहा, बट मैं रे डायग्राम एज्यूम कर लेता हूँ. रे डायग्राम से आप देखो रे डायग्राम कितना हेल्पफुल होता है एग्जैक्ट एनालिसिस करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड V, ये निकालना है. पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, वेयर इमेज विल बी या वेयर स्क्रीन शुड बी लोकेटेड फॉर अ शार्प इमेज. टू फाइंड टू गेट अ शार्प इमेज, इसका मतलब V निकालना. Now as we know that बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, एज वी नो, यहाँ लिखेंगे एज वी नो द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U इज इक्वल टू H2 अपॉन H1. आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस दिस कॉन्सेप्ट. एंड आई टोल्ड यू ऑल्सो कि जब इस टाइप का कुछ होगा तो हम लोग इसको एज्यूम करके फाइंड आउट करते हैं. आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर H2 इक्वल टू 3H1 है, इसको हम लिख सकते हैं H2 अपॉन H1 इक्वल टू 3. दिस H1 विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई, H2 नीचे जाएगा इक्वल टू 3, यहाँ 3 लिख देते हैं. माइनस V अपॉन इक्वल टू 3 implies that minus V is equal to 3U. You getting it? I think U कितना दिया, -10. माइनस V इज इक्वल टू -3 into -10, and this will make minus V is equal to -30, minus cancel, V is equal to 30 सेंटीमीटर. मीन्स स्क्रीन कहाँ पर लोकेट की जाएगी, 30 सेंटीमीटर लोकेट की जाएगी. एंड ये तो पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, दिस इज द पोजीशन. एंड नेचर की बात करें, नेचर पॉजिटिव यानी राइट में. अगर कॉन्केव मिरर में, अब अगर आपके माइंड में रे डायग्राम है, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लो. कॉन्केव मिरर में एक ही केस में राइट बनता है जब ऑब्जेक्ट फोकस से आगे पहुंच जाए. इसका रे डायग्राम क्या होता है, ये F है, ये फोकस से आगे ऑब्जेक्ट पहुंच गया. इसका रे डायग्राम, ये फोकस से पास होगा और इतना डबल C होता है यहाँ कहीं, और दूसरा इसका ये, और ये इधर जाके मिलता है. आई थिंक यू रिमाइंड. इन दिस केस ऑब्जेक्ट राइट बनता है, इमेज राइट बनता है. ये V जो कि यहाँ 30 आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब राइट बन रहा है. और राइट में जो बन रहा है ये इरेक्ट है. ये तो पोजीशन हो गई. नेचर की बात करें, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एज लाइक इन फर्स्ट केस, वर्चुअल एंड इरेक्ट. अब बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें ये एनालाइज करना हो कि ये पक्का पॉजिटिव ही होगा, पक्का यही केस है. ये तो हमने एज्यूम कर लिया भाई ये केस होता है. तो उसके लिए क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसका फोकल लेंथ निकालेंगे. देखेंगे फोकल लेंथ कितना है. अगर फोकल लेंथ, ये जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है,
ऑब्जेक्ट पोजीशन कितनी थी, U10 थी, U-10। अगर फोकल लेंथ 10 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अंदर है, तो पहले फोकल लेंथ निकाल लेते। अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर है तो यही वाली कंडीशन है। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, टेस्टिंग के लिए। ये आप टेस्ट क्वेश्चन कितने सॉल्व हो गया आपकी टेस्टिंग के लिए। मीन्स नॉलेज बहुत रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेट अस से हो सकता है फोकल लेंथ भी निकाल ले, पूछ ले, फाइंड द फोकल लेंथ आल्सो। देन फॉर द फोकल लेंथ calculation of focal length, as we know that what 1 upon f is equal to 1 upon b plus 1 upon u. What we can write, f we have to find, b की वैल्यू कितनी 30, पॉजिटिव में 30 आ रही है, एंड u की वैल्यू कितनी माइनस। एलसीएम आप लो 30, it will be 1 plus 3, 4 upon 30. Just a hold. एलसीएम लो, एलसीएम लेना आता होगा तो 30 बन जाए 31 माइनस 10 3 30, it will be minus 2 upon 30 and minus 1 upon 50. ये जो हमको मिला माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमको मिला 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन -15, या इक्वल टू कितना हो गया -15। आप ध्यान से देखिए u कहाँ रखा है, पहली चीज f यहाँ निगेटिव आ रहा था लेफ्ट में, इधर ही है f 15 और u 10, यानी ये पूरा 15 है और ये 10 है, ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है ना, कंडीशन वही है ना। तो ये तो हमने इमेजिन किया था, अब ये लो वेरीफाई भी होगा, कंडीशन वही है, एक ही कंडीशन होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर आप लोग रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझोगे, दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रटोगे तो बहुत टिपिकल कंडीशन होगी, तो इसमें कुछ भी रटने का नहीं है। जैसे मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, आपकी लाइबिलिटी बनती है, आप नेट से या कहीं से भी एनसीईआरटी के आप PDF डाउनलोड कर लो, वॉट एवर जो भी करो, आप प्रैक्टिस करो, आप मुझसे पूछो, कुछ क्वेश्चन सेंड करो तो अच्छी बात है। बाकी मैं कोशिश से कर रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो, मैं तो आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ बच्चों, है ना। तो आपकी ड्यूटी बनती है सब अच्छे से ग्रैस्प करो माय डियर। और ये 10th क्लास बोर्ड है, ये 10th आपका बोर्ड है और बोर्ड में कोई लापरवाही नहीं। टाइम डिले ज़रूर हो रहा है, बट यू शुड टू मैनेज दिस टाइम वेरी केयरफुली एंड सिंसियरली। हम लोग भी मैनेज कर रहे हैं, राइट। सो लेट अस solve another numerical which is based on the lens. Solution number 3. इन सब क्वेश्चंस को करने में बच्चों हार्डली 2 मिनट 3 मिनट पूरा सॉल्व करने में लग गए, 2 मिनट लगेगा। अगर आपको नॉलेज है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम टेकन आपके लिए, इसको अच्छे से समझो। 1 मिनट का क्वेश्चन है ये सब। जैसे क्वेश्चन है, लेंस की बात करूँ, ये क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ बेटा, ये प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में है। क्वेश्चन इज दिस: ए कॉन्केव लेंस है फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, at what distance should be object from the lens to be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Question is this:
अ कॉनकेव लेंस, क्वेश्चन में कॉनकेव लेंस दिया हुआ, कॉनकेव लेंस का एक ही कंडीशन है, जैसे वो हम कॉन्वेक्स मिरर का एक कंडीशन था, वैसे यहाँ कॉनकेव लेंस की कंडीशन। जस्ट अ मैंने बताया, अ कॉनकेव लेंस है फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर गिवन। क्वेश्चन पढ़ने अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। गिवन अ कॉनकेव लेंस हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है, इमेज राइट बननी है, सॉरी इमेज लेफ्ट बननी है, और f को हम 15 ही लेंगे, -15, क्योंकि इमेज लेफ्ट में बन गई। At what distance should be object from the lens to be placed so that it forms an image of 10 centimeter? Image 10 centimeter भी माइनस, आप पहले ही बोल रहा है कॉनकेव लेंस एक ही कंडीशन है, उसमें कंडीशन क्या है मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ बच्चों। कंडीशन ये है, दिस इज द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट यहाँ है, this is the object, and focus, and दूसरा ये इमेज थोड़ा छोटा है बच्चों, बट इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसका लेफ्ट में बन रहा है, वी भी लेफ्ट, यू भी लेफ्ट, और ये फोकल भी लेफ्ट। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको मैच कर लेना अपने नोट्स में, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। वी हैव टू फाइंड व्हाट यू। अब एज वी नो दैट द लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, तो 1/-15, जो भी मैंने यहाँ पर गिवन कंडीशन लिखी माइनस में क्यों लिखी मैंने बता दिया, क्योंकि पहले क्वेश्चन ही कह रहा है कॉनकेव है, एक ही कंडीशन, तो यही होगा। v हमें पता है 1/-10 माइनस u, वी हैव टू फाइंड u, जिसको निकालना उसको अपने जगह पर हम दिया, एंड इट विल बी u कैलकुलेट करना है, u इस न्यूमेरिकल u कैलकुलेट करना है। तो u अगर कैलकुलेट करना है बच्चों, फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है, लेंस माइनस मिरर प्लस, तो यहाँ पर u कैलकुलेट करना है, तो ऐसा करते हैं कि u को अपनी जगह पर हम देते हैं, ये हो जाएगा -1/-15, इसको इधर ले आएंगे, प्लस 1/10, ये चूँकि माइनस है कराएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/u। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -1/u, इस तरफ ले लो, इज इक्वल टू इधर ले लो -1/15, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लो 1/10 फॉर इजी कैलकुलेशन, -1/15। एलसीएम आप लोगे, एलसीएम ले लो 30, तो ये सबको पता होगा 10 3 2, तो 1/30 आया। ये 1/30 1/u नहीं आया, -1/u आया, इट मीन 1/-u इक्वल टू 1/30, ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, तो u इज इक्वल टू -30, यानी u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव आ भी रहा है। दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड आल्सो द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है कि वो लेंस कितना मैग्नीफाई करेगा। तो एज यू नो दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। तो -v/u का मतलब सॉरी, इसमें v/u होता है, नहीं -v/u, और v का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर v कितना है, v कितना था
v is given 10 minus 10 upon u minus 30। इसमें बच्चों v upon u होता है, ओके, डोंट बी कंफ्यूज। इसमें v upon u होता है और मिरर में माइनस v upon u होता है। इसमें हाँ यस मैंने बताया था, सॉरी मैं थोड़ा माइंड नहीं कर पाया। v upon u होता है, v upon u तो ये -10 -30, u गिवन ही है -10 एंड 30 भी ऑल्सो यहाँ से निकला है u 30, ये माइनस कट गया, बच गया 1/3। 1/3 का मतलब 0.33 समथिंग, ये है मैग्नीफिकेशन। तो देखिए कोई क्या निकालना था, इमेज कहाँ प्लेस्ड होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कितना होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, जो कि u -30 एंड दूसरा क्या निकालना था, दूसरा निकालना था मैग्नीफिकेशन जो कि 0.33 आया। यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 30, ठीक, ये है आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे बेस्ट न्यूमेरिकल्स मिले हैं आपको, जो भी हमने न्यूमेरिकल बताया, अभी एक लेंस बताया, और ऐसे आपको कई न्यूमेरिकल्स आप सर्च करो, नहीं मैं आपको असाइनमेंट दे सकता हूँ, आप चाहोगे तो असाइनमेंट के लिए आप मुझे वो मैसेज कर दें, मेरे पास जो भी मटेरियल है मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे या व्हाटएवर कहीं भी। सो इतना आप अच्छे से माइंड में रखिए, और इस पे बेस्ड और न्यूमेरिकल डू एंड मोर न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस concepts, and these concepts are very important for, especially for 10th class. Be serious, keep studying, learn it properly, right? Okay my dear students, and like, subscribe and share, okay बच्चों, thank you।